and signal transduction pathway we have discussed about the cyclic AMP pathway. कोई भी हार्मोन या लाइगेंड आएगा, रिसेप्टर से अटैच होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, जीएस प्रोटीन, और उसके बाद साइक्लिक एमपी प्रोडक्शन होगी. प्लीज if you people can your mics. Then we discussed about the GS proteins which can activate adenine cyclase and GQ proteins which can inhibit adenylate cyclase enzyme and inhibit the production of cyclic AMP. Today's another pathway that starts with GQ protein. As we already know that G protein has 3 subunits, alpha, beta and gamma. Alpha is different in every protein, and here we are talking about the G alpha Q protein. अगर ये एक्टिव होगी तो उसके बाद कौन सा कैस्केड चलेगा? If there is activation of this GQ protein by any receptor, then it can activate phospholipase C enzyme. In cyclic AMP pathway, there was adenylate cyclase enzyme, but here the enzyme is phospholipase C. And the second messengers which can be produced are IP3, diacylglycerol, and calcium. So whenever there is activation of this GQ protein, there is production of IP3 inositol triphosphate, diacylglycerol, and calcium as second messengers. This is the whole pathway. Any signal coming from outside the cell activates the receptor. Activated receptor causes the activation of this G protein. In this case, that is GQ protein. Activated G protein replaces GTP with GTP, and then it causes the activation of this enzyme, phospholipase C enzyme. And what will it do? Phospholipase C enzyme causes the breakdown of inositol phospholipid into two things, diacylglycerol and inositol 1,4,5 triphosphate, that is known as IP3. These two are the second messengers. This diacylglycerol can activate protein kinase C enzyme. A protein kinase C enzyme causes the phosphorylation of and causes the interconnection of different metabolites inside the cell. Ultimate response इससे आएगा. IP3 causes the release of calcium from endoplasmic reticulum, and that calcium indirectly can activate again protein kinase C. So this is a whole mechanism. Any question related to this GQ protein? सर Yes. सेकंड मैसेंजर यहाँ पे मतलब क्या कौन सा होगा? क्या चीज? सेकंड मैसेंजर. सेकंड मैसेंजर कौन सा होगा? सेकंड मैसेंजर में ये डाइसल्ग्लिसरॉल DAG, दिस वन DAG. सेकंड है IP3, ये वाला IP3 एनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, एंड थर्ड ये कैल्शियम जो रिलीज हो रहा है. ये तीनों सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं. ओके. This diagram is taken from Lippincott from phospholipid chapter. आपके लिपिनकोड का इशू ये है कि इसमें हर चीज जो है ना वो बड़ी स्कैटर्ड है, तो इसलिए मैंने डिफरेंट वेज में वो डायग्राम्स इकट्ठी करी है. एंड होप दिस इज फ्रॉम लिपिनकोड एंड वेल इलेबोरेटेड डायग्राम. नंबर 1,
attachment of hormone with the serpentine receptor, 7 transmembrane receptor. Then activation of this receptor causes the activation of G protein having 3 units, alpha, beta and gamma. And when we say that it is activated when there is replacement of this GTP with GTP. So here in this case there is attachment of GTP, so it has been activated. Activated G protein, in this case it is GQ protein, goes to the enzyme phospholipase C. And phospholipase C causes the breakdown of membrane phospholipid into 2 things, diacylglycerol and एनोस्टोल 145 ट्राइफॉस्फेट IP3। लिपिड्स आप लोग कर चुके हो या भी करना है? ओके, लेकिन मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स में आपने देखा होगा कि मेम्ब्रेन्स में फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। फास्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें फास्फेट भी है और साथ में फैटी एसिड्स है और कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड है। सो दिस इज मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड। ये जो रेड सर्कल नजर आ रहा है ये इसी को ब्रेक डाउन कर रहा है। एंड दैट फास्फोलिपिड particularly phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate PIP2। इस पे फास्फोलिपिड सी ने काम किया, ब्रेकडाउन हुई, डाइसल्ग्लिसरॉल एंड देन IP3। डाइसल्ग्लिसरॉल कैन एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज से डायरेक्टली और काइनेसिस का काम किया, काइनेसिस causes a phosphorylation। So protein kinase C causes a phosphorylation of different proteins and then there are intercellular events according to the hormone or ligand. Second way, IP3 causes the release of calcium from the endoplasmic reticulum, and that calcium can again activate protein kinase C by the calcium calmodulin complex. कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं एंड देन देयर इज फास्फोराइलेशन। ये डायरेक्ट एक्टिवेशन है, ये इनडायरेक्ट एक्टिवेशन है। सो दीज ऑल 3 DHE, IP3 and calcium can act as second messengers। इजी है, ये मुश्किल तो नहीं है? Yes। ओके, सो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, साइक्लिक AMP पाथवे एंड देन फास्फोलाइपेज C पाथवे, IP3 पाथवे, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हम देखेंगे, लेकिन अगर सेकंड मैसेंजर्स में आप साइक्लिक AMP और ये DHE IP3 वाले 2 पाथवेज कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड। और दोनों के लिए G प्रोटीन्स ही हैं, G बॉडी कपर रिसेप्टर एंड G प्रोटीन्स, GS प्रोटीन एंड GQ प्रोटीन, ये 2 इंपॉर्टेंट है। Well, this is the structure of phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate, that is membrane phospholipid। और ये क्लीवेज साइड है जो इसे शो कर रहा है। दिस पोर्शन विल बिकम डाइसल्ग्लिसरॉल एंड दिस पोर्शन विल बिकम inositol ट्राइफॉस्फेट। व्हाई ट्राइफॉस्फेट? हैविंग 3 phosphate groups। In our initial lectures we have discussed about the second messengers, and in that case we have mentioned that there is cyclic GMP also present as second messenger। cyclic AMP वाला पाथवे पूरा कर लिया, IP3 DAG वाला कर लिया। Now here is the production of cyclic GMP, it is again a second messenger, but in that case there is no need of G proteins। यहाँ भी आपको इस पूरे कैस्केड में कहीं भी G proteins नजर नहीं आएंगे। cyclic GMP is cytosolic process। जो ये वाला प्रोसेस थे ये मेम्ब्रेनस थे, ये मेम्ब्रेन में थे। साइक्लिक AMP प्रोडक्शन में मेम्ब्रेन एंजाइम से होती है, IP3 की प्रोडक्शन में मेम्ब्रेन वाले एंजाइम से होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मेम्ब्रेनस एंजाइम नहीं है, ये साइटोसोलिक है। Any ligand, for example nitrous oxide comes, it activates guanylyl cyclase enzyme which causes a production of cyclic GMP from GTP। साइक्लिक AMP प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम मौजूद था और GMP के लिए गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम मौजूद है। डायरेक्टली एक्टिवेट कौन कर रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड और एनी अदर कंपाउंड व्हिच कैन एक्टिवेट इट, इसका लिगेंड है।
Cyclic GMP can ultimately go to increase the ion channels, or it can activate protein kinases, or it can activate phosphodiesterases. ये different responses according to the need है. पर्टिकुलरली अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो जब ये काम करेगा तो उसके बाद यहाँ पे आयन चैनल्स ओपन होंगे, प्रोटीन काइनेसेस शायद इनएक्टिव होते हैं, फॉस्फोडाइलेशन और वेसोडाइलेशन होती है. आप में से शायद देखा हो किसी ने कि अगर किसी को अंजाइना या हार्ट पेन होती है, हार्ट अटैक हो रहा होता है, तो ज़ुबान के नीचे एक टैबलेट रखवा देते हैं एनडीज़िया कैपोटिन. वो अल्टीमेटली करती क्या है, उसके बाद वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. नाइट्रिक ऑक्साइड थ्रू साइक्लिक जीएमपी काजेज ऑफ वेसोडाइलेशन. तो जो हार्ट की वेसल्स हैं उन्हें थोड़ा सा वो डायलेट कर देती है ताकि जो ब्लॉकेज है वो कम हो, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो सके. दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये साइक्लिक जीएमपी का रोल क्या है. एंडोथेलियल सेल्स भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्रीट करते हैं ना. नाइट्रिक ऑक्साइड्स के 3 आइसोफॉर्म्स हैं, एंडोथेलियल है, न्यूरोनल है, और फिर उसमें एक और होता है इंड्यूस्ड है. तो वो तीनों डिफरेंट वेज में काम करते हैं. मोर लाइकली आप जब सेकेंड में आएंगे तो इसका मैकेनिज्म मजीद डिटेल्स में आप देख लेंगे. लेकिन पेट्रो इट हैज 3 आइसोफॉर्म्स, 3 होते हैं और तीनों का मैकेनिज्म एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है. Well, this looks as a horrible diagram, but it again has been taken from Lippincott. Enzyme linked receptors. रिसेप्टर्स हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें सरपेंटेनियन जी प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर से, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से, आयन गेटेड रिसेप्टर से और साइटोकिन रिसेप्टर से. तो अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, और इसकी एक ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट, दैट इज इंसुलिन. इंसुलिन acts through this enzyme linked tyrosine kinase receptor. Glucagon acts through G protein coupled receptor. ये different receptors है. डायग्राम ज्यादा टफ तो नहीं लग रही? हाँ सर. लग रही है सर, Okay, बहुत sir. टफ है. Don't worry, अब easy हो जाती है. Well, it has been taken from इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन चैप्टर ऑफ लिपिनकॉट. आपने सारे चैप्टर्स ऐसे उस तरह से नहीं करने, आपको जस्ट ये जितना रिक्वायर्ड हो आपको बता देता हूँ. एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द सरपेंटेनियन रिसेप्टर्स. दे आर इन फॉर्म ऑफ टेट्रामर. अगर इस रिसेप्टर की हम बात करते हैं तो इसमें आपको 4 यूनिट्स नजर आ रहे होंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और ये दोनों डिसिमिलर हैं. बीटा और तरह के हैं, अल्फा और तरह के हैं. अल्फा बीटा डाइमर्स ये इंसुलिन रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हैज इंटरनल टायरोसिनेज फास्फोराइलेज एक्टिविटी. ऑटो फास्फोराइलेशन कैन अकर एट दिस रिसेप्टर. इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी मौजूद है बीटा सब यूनिट में, और जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे फास्फोराइलेशन डायरेक्टली हो जाती है. सो दैट्स इट इज नोन एज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. ऐसा रिसेप्टर जो एंजाइम्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं. इंसुलिन गेट्स अटैच्ड विद अल्फा सब यूनिट, दैट इज एन एमसीक्यू. इंसुलिन गेट्स अटैच्ड विद अल्फा सब यूनिट एंड देन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ दिस बीटा सब यूनिट. अल्फा पे आके अटैचमेंट होगी, बीटा की एक्टिवेशन हो जाएगी. बीटा की एक्टिवेशन पे क्या होगा, ऑटो फास्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू. ये जो टायरोसिन है इसकी फास्फोराइलेशन होगी, एंड देन देयर इज ए कैस्केड ऑफ द डिफरेंट इंटरमीडिएट्स प्रोडक्शन एंड देन कॉजेज द अल्टीमेट रिस्पांस. ये जो एरोस शो किए हैं ये शो करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली इफेक्ट्स आ जाएंगे इंसुलिन के, जो फिलहाल आपको ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है. आपने जस्ट ये देखना है कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता क्या है. अल्फा बीटा डाइमर है, अल्फा पे अटैचमेंट हुई, बीटा पे एक्टिवेशन हुई, फास्फोराइलेशन हुई, और फास्फोराइलेशन के बाद इंसुलिन रिलेटेड सबस्ट्रेट टायरोसिन. इंसुलिन रिलेटेड सबस्ट्रेट ये एक इंटरमीडिएट है, इसकी फास्फोराइलेशन हुई, और उसके बाद एक लॉन्ग कैस्केड चला, और उसके बाद सब ये फिर इफेक्ट्स आए. जनरली अगर हम बात करें, इंसुलिन इंक्रीजेज द ग्लूकोज अपटेक इन द सेल,
it causes hypoglycemia, glycogen synthesis, protein synthesis and fat synthesis. मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है. इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्म. एनाबॉलिक है तो सारे प्रोसेस जो सिंथेसिस वाले बढ़ जाएंगे, जो डिग्रेडेशन वाले वो कम हो जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स इट कैन अल्टर द जीन एक्सप्रेशन. अगेन सेकेंडरी पोर्शन आपके लिए जस्ट इतना इंपॉर्टेंट है. रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुई, बीटा सब यूनिट पे इंसुलिन रिलेटेड सबस्ट्रेट की फॉस्फोराइलेशन हुई, एंड देन देयर इज ए लॉन्ग कैस्केड ऑफ द इवेंट्स एंड देन अल्टीमेट इफेक्ट्स. अब तो मुश्किल नहीं है. नो सर. ओके नो. टायरोसिन का फायदा, यस. टायरोसिन का इधर क्या फंक्शन है? ओके, टायरोसिन इज एरोमेटिक अमीनो एसिड. अमीनो एसिड तो आप कर चुके हो ना, प्रोटीन्स. यस Yes, sir. टायरोसिन इज अमीनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द बीटा सब यूनिट. हम पर्टिकुलरली टायरोसिन की बात क्यों करें? क्योंकि इस पे फॉस्फोराइलेशन होनी है. टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ द बीटा सब यूनिट, इस पे फॉस्फोराइलेशन हुई और ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ बीटा से. और जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी उसके बाद फिर आईआरएस की टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन होगी. पर्टिकुलरली इस केस में टायरोसिन की ही फॉस्फोराइलेशन होती है. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स. काइनेज एंजाइम्स causes of phosphorylation. ऐसे काइनेजेस जिन्होंने टायरोसिन रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन की है. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स. इसका बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है टायरोसिन, क्योंकि ये बीटा सब यूनिट माइनोसिस से मिलकर बना हुआ है और उसमें एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड टायरोसिन. I was discussing about the types of students. There are two types of students. Number one, for good students, and good students will understand this diagram. Quite easy, nothing to do, nothing to worry about. And then comes another class of students who are known as the best students, who can do anything for their marks, for their grades and for their achievements. And for those students there is another diagram which has been taken from Lippincott. Not Lippincott, it's from Harper. आप कुछ मुश्किल लगी होगी. सर हम बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, हम कर लेंगे इंशाल्लाह. Yes, you can do it. क्योंकि Sir, आप नहीं रहती सर. आपसे जो पहली क्लासेस हैं वो भी सब कर चुके हैं. So you will do it, I know it. लेकिन ये इतनी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है. You can say it's ठीक है. 90% स्टूडेंट्स लिपनकोट पे जाएंगे, 10% स्टूडेंट्स इस पे आएंगे. I know that, don't worry. Okay, just to elaborate कि इंसुलिन काम कैसे करती है. It's not a very simple way, जिस तरह इसमें शो कर दिया कि बस ये इतना सा काम हुआ और हो गया. Again the same thing, insulin, attachment of insulin alpha receptors, autophosphorylation of tyrosine residues. Here the tyrosine, because the symbol for tyrosine is Y, not T. For autophosphorylation, phosphorylation of IRS complex, insulin related substrate 1 to 4 complex phosphorylation, and then there is a long cascade of different events. There may be activation of this GRB2M SOS system that causes a cell growth. जो हम बात कर रहे थे ना कि एनाबोलिज्म, जीन ट्रांसक्रिप्शन, जीन्स पे जाके एक्ट करता है, डीएनए सिंथेसिस को बढ़ाता है, तो वो सेल ग्रोथ वो GRB2M SOS सिस्टम के थ्रू करेगा. And in this system there is activation of a lot of intermediates, P21 RAS protein, RAF protein, MEC protein, MAP kinase proteins. ये सारे डिफरेंट प्रोटीन्स हैं. और इसमें जो RAS प्रोटीन है दैट इज स्मॉल जी प्रोटीन. जो हमने पहले बात की थी, जी प्रोटीन दो तरह की होती हैं, स्मॉल एंड लार्ज जी प्रोटीन. लार्ज जो कि सिंगल कैस्केड में है और स्मॉल ये है, ये साइटोसोलिक. अनदर वे, there is activation of PI3 kinase, phosphatidylinositol 3 kinase enzyme, and that causes the activation of these two compounds, P70 S66K or PKB AKT system. Or there is indirect activation of mTOR and then activation of this one. Forget about this one. अगर आपको इसकी समझ नहीं आती, forget about that, कोई ज़रूरत नहीं है. Just remember
this portion IRS phosphorylation and then there the ultimate effects. जो मैं इस डायग्राम में पर्टिकुलरली आपको दिखाना चाह रहा था कि इंसुलिन इफेक्ट्स होते क्या क्या हैं. एक तो हमने देख लिया सेल ग्रोथ थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, रिसेप्टर्स की मूवमेंट्स होंगी, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट्स है, रिसेप्टर्स की मूवमेंट्स है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है और जीन कुछ जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा किया जाएगा. सो हार्मोन्स एक्ट इन ए वेरी डाइवर्स मैकेनिज्म. ये सारा पोर्शन कर सकते हो, वेल एंड गुड. नहीं कर सकते, डोंट वरी, इट्स इनफ. ये काफ़ी है, ये इतना पोर्शन है. बाय द वे ये डायग्राम मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, हम तो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं मुश्किल लग रही. Okay, so let's see. Okay, Sir. Again, सर ये it's GRB2MSOS इससे क्या मुराद है? हाँ, मैं अभी तक यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि ये क्या है. These are abbreviations of different things. Mammalian seventh son of seventh-less is the gene MSOS. Growth hormone related binding protein, G protein related binding protein, something like that. GRB2 ये है. Inositol, phosphoinositol 3 kinase. जी सर. P70 is a 70 ribosomal unit of S6 kinase. And then mTOR is something related to mammalian transcription. ये सारे की जो एब्रीविएशंस हैं ये लिखो और उसमें हार्पर में ये इस डायग्राम के नीचे दी हुई हैं. सो यू कैन रिमेंबर दैट. अगर ठीक है वहां से भी सर. नहीं मिलती तो ऑफ कोर्स नेट तो है. ओके, ये हार्पर में हार्मोन्स एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन चैप्टर से डायग्राम ली गई है. उस चैप्टर में से आपने जस्ट डायग्राम्स ही करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है. इसके नीचे डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, 42 चैप्टर ऑफ हार्पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. जैक-स्टेट पाथवे ये इतना सही है, बिल्कुल छोटा सा. ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन and certain other hormones can act through Jack-Stat pathway. Janus kinase, signal transducer and activator of transcription pathway. इसमें और पिछले वाले में फर्क सिर्फ इतना है, ये साइटोकिन रिसेप्टर्स हैं, वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स से. इसमें रिसेप्टर के पास अपनी ऑटोफॉस्फोराइलेशन कैपेबिलिटी नहीं है. यहाँ पे ये खुद फास्फोराइलेट हो जाते थे, ऑटोफॉस्फोराइलेशन थी. यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं है. रिसेप्टर्स with JAK proteins in the form of dimer, ligands come and then there is dimerization of this receptor. पहले ये अलग-अलग थे, उसके बाद ये इकट्ठे हो जाएंगे. Dimerization, then phosphorylation of JAK protein, and after that phosphorylation of STAT protein. And that phosphorylated STAT protein causes a nuclear translocation and then ultimate effects. ये इतना सिंपल ही है बस. अब ये X क्या है? ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो एक्टिवेट हो सकते हैं. GRB2 प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड C gamma, phosphoinositol 3 kinase enzyme. Don't worry about this one. फर्क सिर्फ इतना जो रिसेप्टर्स का डिफरेंस है कि साइटोकिन रिसेप्टर्स में ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होती, टायरोसिन काइनेज एंजाइम में ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है. अटैचमेंट, डाइमराइजेशन, एक्टिवेशन ऑफ जैक, एक्टिवेशन ऑफ स्टैट, दैट्स इट. ये तो सिंपल है, जैक स्टैट बात है, इसमें तो और कुछ नहीं करना. ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी बायोकेमिस्ट्री आज? सर काफी ज्यादा है. काफी ज्यादा मुश्किल होगी है. बट यू आर गुड स्टूडेंट्स, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. बहुत है. चलिए
इसमें मैं दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ, आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइक्लिक AMP और कैल्शियम IP3 मैकेनिज्म्स हैं, वो आपने 2 लाजमी करने हैं। ये बाकी सब कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सर दोबारा बताइएगा, जो अच्छे स्टूडेंट नहीं है वो सिर्फ क्या करें? उनके लिए साइक्लिक AMP पाथवे एडनासाइक्लिस वाला, और उसके बाद जो दूसरा हमने किया था कैल्शियम IP3 वाला। करवा सर देंगे जो भी ना कर पाए। हाँ जी, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाकी सब। और सर अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी ना कर पाए तो वो वेट करे फिर एग्जाम का, एग्जाम के बाद सप्ली का, सप्ली के बाद सुपरा सप्ली का, फिर दोबारा ध्यान दीजिए। और फिर एग्जाम। वो छुट्टी तो करो। बिकॉज देयर इज नो अदर वे। फ्री टॉप सुप्रीम कोर्ट में है या हार पर हिट देखनी पड़ेगी? हार्पर से आपने जस्ट डायग्राम्स करनी है, नथिंग एल्स। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स उसमें बहुत ज़्यादा दी हुई है, हार्पर में आपको इतनी डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आपने जस्ट डायग्राम्स देखनी है और डायग्राम्स को खुद एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा हम हटके चैप्टर है, यस, लिपर का कौन सा चैप्टर है ये हार्पर में हार्मोन्स और सिग्नल ट्रांसडक्शन के नाम से चैप्टर है। आई थिंक सो दैट्स 42 चैप्टर और सेकंड। और लिपन में जो साइक्लिक AMP है दैट इज इन द ग्लाइकोलाइसिस चैप्टर। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज वाला चैप्टर है, आई थिंक सो 7th चैप्टर। और जो IP3 कैल्शियम वाला पाथवे दिया हुआ है दैट इज फास्फोलिपिड्स, कम्प्लेक्स लिपिड्स वाले चैप्टर में है। और जो इंसुलिन है दैट इज इन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन चैप्टर, वो डिफरेंट चैप्टर्स में है, एक चैप्टर में नहीं है। आजकल कोरोना छाया हुआ है, कोरोना में बॉडी पेन्स बहुत होती हैं और उसमें शायद आप लोगों ने दिख रहा हो कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है अंदर, और साइटोकिन्स स्टॉर्म्स आता है। साइटोकिन्स डिफरेंट इंटरमीडिएट्स हैं, वो इन्फ्लेमेटरी हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन के बाद फिर बॉडी पेन्स भी होती हैं, लंग्स भी डैमेज होते हैं, सब कुछ होता है। इसी तरह जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो आते हैं बॉडी में, इफेक्ट करते हैं, उसके बाद इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, डैमेज काज करते हैं। डैक्टियोक्सिजन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं कि जो ऑक्सीजन से बनती हैं और वो सेल मेम्ब्रेन्स को, सेल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब ये सारे काम करते हैं एक प्रो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, एंड दैट इज नोन एज NF-κB और NF-κ-बीटा पाथवे, NF-kappa-B पाथवे। इसके थ्रू सारे काम करते हैं। साइटोकिन्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, डैक्टियोक्सिजन स्पीशीज करते क्या है, एक रिसेप्टर है जिसके 2 हिस्से हैं, P50, P65, इसे एक्टिवेट करते हैं और ये जाके जीन्स पे इफेक्ट करता है। और बाकी जो मैंने आपको सारे बताए हैं कि इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, स्वेलिंग हो जाएगी, सेल डैमेज होगा, सेल रप्चर्स होंगे, वो सारा प्रोसेस चलता रहता है। कौन करता है? NF-κB पाथवे, कैपा। और इसमें क्या है, इस रिसेप्टर के 2 पोर्शन हैं, P50 और P65। ये एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद DNA में जाकर अटैच होगा और सारे प्रॉब्लम्स कर देगा। अच्छी बात जो इसमें मैं बता, आजकल हम कोरोना पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो भी थोड़ा क्रिटिकल पेशेंट है, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन या डेक्सामेथासोन टैबलेट्स देते हैं। वो क्या करती है, वो सारे प्रोसेस को इनहिबिट कर देती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कैसे इनहिबिट कर देती हैं? इस कम्प्लेक्स को एक्टिव नहीं होने देती, नंबर 1। अगर ये एक्टिव हो गया तो इसके साथ जो इसकी बाइंडिंग को रोक देती है।
कोएक्टिवेट, और थर्ड इस 65 को डायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं। एनी हो, इतनी डिटेल्स में आपको जरूरत नहीं, बस इतना याद कि NF-κB पाथवे इन्फ्लेमेशन में आता है और हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, फीवर कम हो, बाकी सारे प्रॉब्लम्स कम हो। अगेन दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम हार्पर, ये भी हार्पर की डायग्राम है। आज का लेक्चर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ख़त्म हो चुका होगा है, साइक्लिक AMP और कैल्शियम IP3 मैकेनिज्म के साथ ही। बाकी का लेक्चर वो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए था। होपफुली आप इसे देखेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है? आज आप सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं एक्सेप्ट मी। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट इन द चैट बॉक्स। आपने इसका रोल बताया कोरोना से रिलेटेड, ये रोल दोबारा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है इसलिए मुझे नहीं समझ लगी क्या कहें। सर आपने कोरोना से रिलेटेड इसका रोल बताया था, तो वो थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करें। ओके, कोरोना से रिलेटेड मैं ये बता रहा था कि कोरोना में एक टर्म यूज की थी साइटोकिन स्टॉर्म, जिसमें ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन से ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, वायरसेस इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो ये जाके इस मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं और उसके बाद फिर वो इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग होती है, उसके बाद वहाँ पे वेजोडाइलेशन है, पेन है, ये सारे कोरोना में साइन सिम्टम्स आते हैं। सेलुलर डैमेज है जिसमें लंग्स का डैमेज सबसे ज़्यादा होता है, तो वो इसी पाथवे के थ्रू काम करते हैं। और हम जो स्टेरॉइड ड्रग्स दे रहे हैं उन्हें कोरोना पेशेंट्स में, डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस लगाते हैं, वो इस पाथवे को इनहिबिट कर देते हैं। दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ स्टेरॉइड ड्रग्स। अगर ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कैसे है, वो इस पूरे पाथवे को रोक देते हैं। इस स्टेप पे रिसेप्टर की बाइंडिंग को रोक देते हैं, कोएक्टिवेटर्स किसको रोक देते हैं, या फिर इसे डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है। ये DNA है। तो जब ये इसे रोकता है तो आगे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो नहीं चलता, इन्फ्लेमेशन कम होती है। इन्फ्लेमेशन कम होगी, पेन भी कम होगी, रेडनेस कम होगी, स्वेलिंग कम होगी और पर्सन बेहतर फील करता है। और सर वैक्सीन का इससे क्या ताल्लुक है? वैक्सीन भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे हमें दी जा रही है? नो, वैक्सीन ने इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करना होता है। वैक्सीन नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी है उसे बूस्ट करती है, डिफेंस मैकेनिज्म्स को इंक्रीज करती है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। वो इसमें किलिंग वाली साइड पे ज़्यादा आ जाता है कि अगर वो आएगा भी तो फिर वो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होने देता। ओके, लास्ट टॉपिक of this cell chapter, our kind madam has started already. Lipid rafts, cavuli and tight junctions. ये चैप्टर का लास्ट में दिया हुआ है, हार्पर में कभी नहीं आया था, लेकिन एक दो साल क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं तो इसलिए हम इसे देख लेते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर you have already studied. Membrane phospholipid bilayer having proteins and carbohydrates. Then what are these lipid rafts? These are the specialized portions of plasma membrane having a rich concentration of different lipids. Simple है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो वाले पोर्शंस हैं जहाँ पे लिपिड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कौन से लिपिड्स हो सकते हैं?
cholesterol, sphingolipids, and then also certain proteins. And keep in mind, they are present on the outer leaflet, exoplasmic outer leaflet of the lipid bilayer. इनर वाली साइड पे नहीं होंगे. काम क्या है लिपिड रैप्स का? इन्वॉल्विंग सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड अदर प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. सिंपल है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना. दिस इज अ डायग्राम. ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन्स की. नीचे साइटोस्केलेटन चल रहा है और ये जो रेड पोर्शन शो किया हुआ है, these are the lipid rich portions of the membranes. इन्हीं को लिपिड रैप्स कहते हैं. कौन कौन से इसमें आएंगे? कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड्स एंड दे टुगेदर नोन एज माइक्रोडोमेन्स. ये वाला पोर्शन है. फंक्शन क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. दैट्स इट. लिपिड रैप्स में कोई कंफ्यूजन? सारी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आई तो. सेकंड इज कैव्यूली. कैव्यूली आर द इंडेंटेशंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स. जहां पे लिपिड रैप्स आएंगे वहीं पे अगर इंडेंटेशन हो गया तो उसे हम कैव्यूली कह देंगे. इंडेंटेशन, इन्वेजिनेशन और इन ग्रोथ. और ये कौन करता है? कैव्यूलिन डाइमर प्रोटीन्स करती हैं, जिसको ये बन जाते हैं. कैव्यूली राइट फ्रॉम लिपिड रैप्स. कैव्यूलिन 1 इज इंपॉर्टेंट प्रोटीन. फ्लासिव इंडेंटेशंस हैं और इस इंडेंटेशन में होता है क्या है कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जी प्रोटीन्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स, ईएनओस, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस पोर्शन पे. सो इन अ नटशेल, these lipid rafts and caveoli are involved in signal transduction and transport pathway. Well, this diagram explains the whole thing. ये जो ब्राउन पोर्शन है ये लिपिड रैफ्ट है, जहाँ पे लिपिड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. उसके बाद कैवियोली की बात की थी, दे आर इंडेंटेशंस. तो ये इंडेंटेशन आ गई. हैविंग मल्टीपल रिसेप्टर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स. तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स दो की इन्वॉल्वमेंट इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. बस इतना सी क्वेश्चन था. अटेंडेंस लिंक आप लोगों को मिल चुका है या अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला सर. ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक शेयर भी नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट इन द चैट बॉक्स. तो वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा. हिस्टोलॉजी में या फिजियो में आप लोगों ने कोई इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, गैप जंक्शंस तो स्टडी की है? सर मैडम ने इंटरमस्कुलर स्पेसिस की हैं. नो सर, इस तरह का नहीं किया हिस्टोलॉजी में. फिजियो में भी नहीं किया ट्रांसपोर्ट के साथ? इंटरसेलुलर कांटेक्ट एंड कम्युनिकेशन. सेल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अभी तक जो हमने बात की सिग्नल ट्रांसडक्शन में, उसमें लाइगेंड्स आते थे दूर से फ्रॉम अनदर सेल्स जो, और उसके बाद वो सॉरी डिफरेंट सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं. जो एडजेसेंट सेल्स हैं, जो बिल्कुल करीब करीब है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है. इंटरसेलुलर कनेक्ट उसमें वहाँ पे इतने लंबे चौड़े सिग्नल ट्रांसडक्शन की सेकंड से जरूरत नहीं होती. किससे हो सकता है? गैप जंक्शन से, या कुछ उसमें जस्टाग्राइन सिग्नलिंग होती है. दो तरह के हो सकते हैं. दिस इज गैप जंक्शन. कनेक्शन प्रोटीन है, इसने एक टनल बनाई हुई है, टनल से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेकंड वे वही एक रिसेप्टर और रिसेप्टर के साथ लाइगेंड बाइंडिंग.
ये पोर्शन कर सकते हैं, ये जिस तक आने वाला है। Another diagram of the same thing. Gap junctions are consisted of connexon proteins. ये प्रोटीन्स हैमिंग डाइमर्स होते हैं, आधा एक के पास है आधा दूसरे के पास है, बहुत सारे सब यूनिट्स हैं आपस में मिलते हैं तो एक टनल बनती है, और इस टनल से मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ टू सेल्स, और ये उनके दरमियान में कनेक्सॉन्स प्रेजेंट है। ओपन और क्लोज दो फॉर्म्स में होते हैं, ओपन होगी तो ट्रांसपोर्ट होगी, क्लोज होगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। यस सर को साइनेप्स क्या कहा? साइनेप्स आपको जस्ट मुझे एक सर वर्ड की समझ आई है और एक स्लाइड्स की समझ आई है, उसके अलावा और कुछ नहीं समझ आया। द साइनेप्स सॉरी, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे थे। सर हम थोड़ा सा थक गए हैं। थोड़ा सा नहीं, आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, आई नो दैट। एनीहो, कुछ मॉलिक्यूल्स सर आपने तो कहा था लेक्चर खत्म हो गया। चले ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इट्स ओके, हम और कुछ नहीं करते। थैंक यू सो मच सर। सर अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही। अटेंडेंस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई इशू है, आई एम नॉट ऑथराइज्ड, मैं यहाँ पे ना तो आज अटेंडेंस शो कर सकता हूँ तो वो आप उन्हें ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये जो चैट बॉक्स है ये आज ओपन ही नहीं हो रहा। सर लिंक ही ओपन नहीं हो रहा। क्या ये पिक्चर ट्रूली डिपिक्ट करती है आपकी कंडीशन को? यस सर, बहुत ज्यादा। होपफुली आज के लिए था, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। सर हम भी यही दुआ करते हैं। कीप प्रेइंग, शायद कभी कुछ हो जाए। सर ये स्लाइड्स मिल जाएंगी? यस, ये मैं सारी स्लाइड्स अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको कुछ तो हौसला हो। सर आपने टाइट Thank you, जंक्शंस का sir. नहीं बताया, आपने अभी Sir, गैप जंक्शंस का बताया। किसका नहीं बताया मैंने? सर टाइट जंक्शंस का। जो गैप जंक्शंस में तो वो प्रोटीन्स आ जाती है, टाइट जंक्शंस में जो ना इस तरह की ये बस जिस तरह का सिग्नलिंग ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये आप होपफुली कर लेंगे फिजियो में या हिस्टो में जो है ना। आइनोफोर्स ये आप खुद स्टडी करेंगे, बस एक ये एक रहेगी थी डायग्राम, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही तो आप काइंडली मैसेज कन्वे कीजिए
डीएमई डिपार्टमेंट को कि हमारे पास इशू आ रहा है। सर आप इनकी अटेंडेंस ले लें। मैं बता रहा हूँ मेरा जो यहाँ पे लैपटॉप पे चैट बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा, तो मैं लिंक कहाँ पे शेयर करूँ? आई कैंट सी चैट ऑफ योर पीपल। सर आप जो स्टूडेंट अभी हाजिर हैं उनका वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सीलेंट वे। मैं लैपटॉप पे मेरे पास ये इस टाइम सिर्फ 9 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट किस का लूँ? और ये आपके बाय नेम है जो आपने बड़े अच्छे रखे हुए हैं, ईमेल आईडीज। इस पे रोल नंबर तो नहीं आ रहे कहीं पे? अब ये UK 030801, ये कुछ साहब ऐसे हैं जिन्हें UK जाने का शौक है। आई डोंट थिंक सो, नाम ही होगा। नाम भी यूपी रखा हुआ है। हाँ जी, अच्छा अभी से UK जाना चले जाएंगे। सॉरी टू बॉदर। सर ये ऐसे ही करते हैं सर, सारे ऐसे ही करते हैं। जिसने यूएसए जाना है वो यूएसए रख। सर फिर हम सीआर को अटेंडेंस बाहर करवा देंगे। हाँ जी, आप देख लीजिएगा। आई थिंक सो कि वो कोई ना कोई तो हल निकाल लेंगे इसका। सर ये सर, आज मौलवी नया साहब नहीं को है बस टेंशन attendance। आप आए भी सुबह सुबह सिर्फ अटेंडेंस के लिए थे, ऊपर से सर मैं मैं सब की attendance लगा दूं। मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। अगले वीक आपका लेक्चर होना है, आप उसकी बेसिस पे साथ अटैच कर दीजिएगा दोनों के साथ। सर आज सबकी अटेंडेंस लगा दें। तो ये भी अच्छा है। अटेंडेंस तो प्लीज कुछ कर दें, क्योंकि हमें लेक्चर से ज्यादा तो अटेंडेंस की होती है टेंशन। आई नो, मैं जानता हूँ आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं। मोबाइल साइट पे, लैपटॉप साइट पे जैसे अटेंडेंस लिंक आया सारे आ गए। सर आने की जरूरत नहीं होती, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है लिंक। ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि कोई आप ऐसी लोगों बातें को सर को नहीं बताते हैं। यहाँ पे यार आपकी आज खोल रहे हो यार। अटेंडेंस और उसके बाद वहाँ पे आपकी अटेंडेंस होती है 200%, 100% पूरी क्लास की होती है। अभी तो आप लोगों ने पेपर भी इसी तरह कंबाइन करने हैं। आई नो डैट स्क्रीन शेयर्स होती हैं। अल्लाह खैर करे सर। सर वैसे पेपर सॉल्व करने का कोई एक आधा मेथड ही बता दें। आपको तो वैसे काफी एक्सपीरियंस है, हम तो पहली दफा दे रहे हैं ऑनलाइन। कोई एक आधा मेथड ही बताते हैं सर, कैसे चीटिंग हो सकती है। आप सब गुरु हैं, उस्ताद हैं, कर लेंगे आप। एंड आपका अटेंडेंस का इशू होपफुली सॉल्व हो जाएगा। अगर ना हुआ फिर भी आप गुरु नहीं है, कोई बता दे सर। जब लाइव सेशंस होंगे ना, होपफुली कभी ना कभी तो हम 1 to 1 मिलेंगे, उस वक्त बताऊंगा। सर फिर तो हम ना ही समझे। यानी कि आप चाहते हैं कि साल में कोई क्लास ना हो, आप इसी तरह बस प्रमोट हो जाएं अगली क्लास में। सर ये आपने बहुत अच्छी बात की है, सही बात ऐसे ही होना चाहिए। नहीं सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हम तो फिजिकल आना चाहते हैं। सर रमजान के बाद कॉलेज खुलेगा? सर इंशाल्लाह बिल्कुल खुलेगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान इसलिए सर तरक्की नहीं कर। ऐसे ऐसे लोग जब डॉक्टर बनेंगे ना, तो कोई पेशेंट आएगा खांसी का, तो स्टेथोस्कोप इन्होंने जो होगी वो घुटने पे रखी होगी। ये देखें, गुड गुड वन। एंटीबायोटिक्स का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? यस सर। क्या होती है एंटीबायोटिक्स?